السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو چیٹ باکس میں 1 ٹائپ کریں۔ الحمدللہ۔ اب دعا کے ساتھ سیشن کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس اصول پر لانا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات سننی ہے اور ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ We have to listen to Allah subhanahu wa ta'ala and believe in it. We should not wait for logics, but logics are there for us to explore. کہ logics ہیں اور discoveries ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے تو ہم نے کرنا ہے this is سمعنا واطعنا۔ آج قرآن اینڈ لنگوسٹکس کا سیشن ہے اور ہمارا جو موٹو ہے these laws in your deen are not there to restrict you, they are there to protect you۔ کہ ہمیں پتہ ہے کہ laws of Allah are full of wisdom، پر حکمت قوانین ہے، اور اس لیے ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب جس کی آیات کو واضح طور پر سمجھایا گیا ہے عربی میں قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں عربی زبان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور آج ہم لوگ قرآن کی شارٹیسٹ سورہ جو ہے، سب سے چھوٹی سورہ جو ہے، اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ یہ چیٹ باکس میں بتائیں which is the shortest surah of قرآن۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ یس فاطمہ، سورہ کوثر از دا شارٹیسٹ سورہ آف قرآن۔ اب وہ منظر دیکھ لیتے ہیں، وہ سین دیکھ لیتے ہیں جب سورہ کوثر نازل ہوئی، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورتیں نازل ہوتی تھیں، وحی آتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی وحی لینے کے بعد اس کی تلاوت فرما دیتے تھے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی تھیں جن کی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ فرماتے تھے کہ کیا تمہیں احساس ہے کہ مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے، یا کہ تمہیں یا مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے، یا کیا تمہیں احساس ہے کہ مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ کوثر کی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا، جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ یہ سورہ بہت اسپیشل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ اب تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں سورہ کوثر کا، کہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی his father passed away، ان کے فادر چلے گئے، پھر ان کی مدر بھی چلی گئی، اور پھر ان کے جو گرینڈ فادر ہے وہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے گئے، ان سے اٹیچ ہوئے، ہی پاسڈ اوے۔ وہ انکل کے پاس گئے، ان سے اٹیچ ہوئے، ہی پاسڈ اوے۔ ان کے اس کے بعد ان کی بلوڈ وائف جو تھی وہ بھی چلی گئی، اور اتنے سارے لوگوں کو کھونے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹا ہوا، اینڈ ہی آلسو پاسڈ اوے۔ اور جو اولاد کا جانے کا غم ہوتا ہے وہ کسی بھی زیادہ غم سے بھرا ہوتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بھاری تھا یہ سارا وقت۔ اور خالی یہی نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا چلا گیا، ساتھ میں ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر جو ہوتے تھے نا وہ کھلے ہوتے تھے، مطلب ہماری طرح بند نہیں ہوتے تھے کہ ساتھ والے گھر میں پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو تب گھر کھلے کھلے ہوتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آوازیں جو ساری تھیں، خبریں جو ساری تھیں، ان کے نیبر میں جا رہی تھی، اور نیبر میں کون رہتا تھا؟ ابو لہب، جن کا سگا چچا تھا اور ان کا دشمن بھی تھا۔ تو جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا چلا گیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ ہی واز ایکچولی سیلیبریٹنگ دا ڈیتھ آف اے بیبی، کہ وہ ان کے بیٹے کی جانے کی خوشیاں منا رہا تھا، اور مطلب وہ ہنس رہا تھا، اور اس کی ہنسنے کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک جا رہی تھی، اور وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو رہا تھا، اور گلیوں میں نکلا اور کہنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، باتارا محمد، کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج ہے، جو ان کا لیگیسی ہے، وہ آگے لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے، اب اسلام کو کوئی آگے لے کر نہیں جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سن سکتے تھے۔ تو اٹ واز وین دس سورہ which is known as a gem was revealed، یہ تب نازل ہوئی، اور ہم لوگوں کو یہ سورہ مطلب پورا قرآن ہی فری میں مل گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن کی ہر سورہ کی کافی بھاری قیمت اٹھائی ہے۔ اور یہ سورہ کوثر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا چلا گیا، تب یہ نازل ہوا، اور یہ جم ہم تک پہنچا ہے۔ تو سورہ کوثر ہم لوگ تب پڑھتے ہیں جب ٹائم نہیں ہوتا، تو پڑھنی چاہیے، لیکن اس کی سگنیفیکینس، اس کی اہمیت کو دیکھ کے پڑھنی چاہیے۔ اب تھوڑا سا آگے سورہ کوثر کو ہی دیکھتے ہیں مزید، کہ
हमने पढ़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और मुस्कुराने लगे। तो क्या आयत नाजिल हुई थी? इन्ना आतैनाकल कौसर, नो डाउट वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड। ये वो गिफ्ट था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। उसके बाद वर्स नंबर 2 है फसल्ली ली रब्बिका वनहर, प्रे ओनली फॉर द सेक ऑफ योर मास्टर एंड सैक्रिफाइस। ये कॉल है कि अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दिया है, सो रिस्पॉन्ड टू द गिफ्ट। कि अल्लाह ताला हमें फेवर देते हैं तो हम उसके बाद उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमें। तो नात इना कल का उसे गिफ्ट है, फसल्ली ली रब्बिका वनहर कॉल है। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, वेरीली योर एनिमी अलोन हैज बीन कट ऑफ फ्रॉम द रोड, कि आपका दुश्मन ही है जो इधर कटा है, उसकी लेगेसी आगे नहीं चलने वाली है। तो ये है कंडेमनेशन ऑफ द एनिमीज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम इस जो ये वर्ड्स है इन आतीना कल कौसर, नो लॉर्ड वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड, हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और मुस्कुराने लगे। तो हुआ क्या बेसिकली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड शिफ्ट कंप्लीटली कर दिया गया कि उनके बेटे की डेथ हुई और अल्लाह ताला ने कहा कि नो लॉर्ड वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल मूड शिफ्ट कर दिया कि अगर हम लोग भी कहीं कहीं किसी की डेथ हो जाए तो हम ताज़ियत पे जाते हैं, तो हम कहते हैं कि डोंट वरी, और मतलब तसल्ली देते हैं। ऐसा तो नहीं अल्लाह ताला ने कहा ना कि डोंट वरी योर सन इज इन जन्नह, ऐसा अल्लाह ताला ने नहीं कहा। लेकिन अल्लाह ताला ने कंप्लीटली उनका मूड शिफ्ट कर दिया और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, नो डॉट वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड। दिस इज द पावर ऑफ कुरान कि आपको कुरान के लेंस से हर चीज डिफरेंट नजर आती है और कुरान आपका मूड शिफ्ट कर देता है। जितनी भी मुसीबतों से गुजर रहे हो, आप कुरान खोलते हैं और आपका मूड शिफ्ट हो जाता है। और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला ने किया। और एक चीज ये कि ये वो मौका था कि शायद हम लोग किसी के यहाँ जाएं तो हम ताज़ियत में ये कहेंगे कि सब्र रखो, इन अल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि नो डाउट वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड। यहाँ पर ये बेसिकली ये सूरह ना शुक्रगुजार होने की है। दिस इज द सूरह फॉर द पीपल ऑफ शुक्र। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उन्हें कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको अबंडेंट गुड दिया, अल्लाह ताला ने आपको कौसर दिया, सो बी ग्रेटफुल, बी कंसिस्टेंट इन योर सलाह। तो यहाँ पर आम लोग ये समझे कि तो सब्र का मौका है, वहां पर अल्लाह ताला अपने नबी को कह रहे हैं कि शुक्र करो। और ये है कुरान की पावर कि आपको एक ही रियलिटी कुरान के लेंस के बगैर कुछ और नजर आती है। जब आप कुरान का लेंस लगा लेते हो तो आप वही रियलिटी को सबसे डिफरेंट देखने लगते हो। तो जो पीपल ऑफ कुरान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो हर सिचुएशन को डिफरेंटली देखते हैं। और हमें यहाँ पर एक जेम भी मिल जाता है, यूनिवर्सल लॉ भी मिल जाता है कि फोकस ऑन व्हाट अल्लाह हैज गिवन यू, नॉट व्हाट ही हैज टेकन अवे फ्रॉम यू। दिस इज अ जेम टू लीड अ पीसफुल लाइफ। एग्जैक्टली कि जब भी कोई तकलीफ आए ना तो उस चीज पे फोकस करना है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, पूरा फोकस उस चीज पे रखना है। और जो चीज अल्लाह ताला ने हमसे ले लिया उससे ध्यान हटा देना है। क्योंकि सूरह कौसर में भी हम यही देखते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरफ मुतवज्जा किया कि नो डाउट वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड, हमने आपको हर चीज में अबंडेंस दी है। और यही जैम है पीसफुल लाइफ लीड करने के लिए कि हर चीज में अच्छी चीज देखनी है, हर मौके पर अच्छी चीज या पॉजिटिव साइड को मद्देनजर रखने में। वर्स नंबर 1 है इन्ना आतैनाकल कौसर, नो डाउट वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड। इसमें अब हम लोग वर्ड टू वर्ड हर वर्ड को देखने वाले हैं कि इन्ना आतीना कल कौसर। यहाँ पर जो वर्ब है आतीना का है कि अता किया हमने आपको। तो पहले वर्ब को हम देख लेते हैं आतीना का। तो जो मतलब वी हैव ऑलरेडी गिवन यू द अबंडेंट गुड, अता किया हमने आपको, गिव जो है आतीना का मतलब है। अब जो गिव के मायने में कुरान में 3 वर्ड्स यूज होते हैं, वहब, ईता और आता। ईता में अलिफ ते छोटी है और आता में अलिफ आइन पौ छोटी है, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स कुरान में गिव के मायने में यूज होते हैं। तो फिर हम सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने वहब क्यों यूज किया, अल्लाह ताला ने इता क्यों यूज किया और अल्लाह ताला ने आता क्यों यूज किया, मतलब कोई तो इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस है ना। तो वो हम देखते हैं कि वहब जो है वर्ड, इसका मतलब होता है गिव अ ह्यूज गिफ्ट, टू गिव अ बिग गिफ्ट। कि जो दुआ भी है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन, कि अल्लाह ताला हमें अपने ज़ौज से और हमारे बच्चों से आंखों की ठंडक दे, ट्रांक्विलिटी दे। तो ये जो आंखों की ठंडक है बच्चों और ज़ौज से एक बड़ा गिफ्ट है। तो हम लोग वहां पर वहब का वर्ड यूज कर रहे हैं, रब्बना हब लना। तो वहब का मानिए टू गिव अ ह्यूज गिफ्ट, इसमें बस ये मायने आ जाता है। ईता की तरफ आ जाए तो ईता का मतलब भी देना होता है, बट वो देना एब्सोल्यूट नहीं होता। मतलब एक तो वो देना जो है वो वापस लिया जा सकता है, ठीक है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। दूसरा इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं ईता के साथ, जो अलिफ तेज छोटी है ईता। तो और जैसे कि आते ही ना हुमल किताब, हमने उन्हें किताब दी है, जो किताब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है। और जो
थर्ड वर्ड है आता, अलिफ आइन पौ छोटी है, जो कि इधर यूज हुआ है, उसका क्या मायने है? एक तो ये बिग और ग्रैंड गिफ्ट होता है, ठीक है, दूसरा अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होता है, हमने मांगा नहीं होता लेकिन वो हमें मिल जाता है विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इसके साथ कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। और एक चीज ये भी कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे की ओबीडियंस से बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो आउट ऑफ हैप्पीनेस, आउट ऑफ प्लेयर जो अपने बंदे को गिफ्ट देते हैं उसे हम आता कहते हैं, ठीक है। और वो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होता है कि वो बंदे ने मांगा नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला बिकॉज आउट ऑफ हैप्पीनेस, आउट ऑफ प्लेयर उसे दे रहे हैं, और उसके साथ कोई रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं होती कि बस अल्लाह ताला कह रहे हैं जस्ट एंजॉय द गिफ्ट, ठीक है। तो ये तीन वो वर्ड्स थे। तो अब कौसर, अच्छा पहले पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर, ये वाली चीज देख लेते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं आतैनाका, वी हैव ऑलरेडी गिवन यू, कि जब पास्ट टेंस हम यूज करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो फ्यूचर में मिलनी हो, उसका मतलब ये होता है कि ये यकीनी बात है। जैसे ये ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे एज श्योर एज यस्टरडे, जैसे कल जो बात है वो यकीनी था ना, वो हो गया है, तो ऐसी ये बात पक्की है कि फ्यूचर में होती रहेगी। तो हम जब भी फ्यूचर के लिए पास्ट टेंस यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि ये बात यकीनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एज श्योर एज यस्टरडे, जैसे कि ये काम हो चुका है। अब कौसर की तरफ आते हैं कि कौसर जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, अबंडेंट गुड, कुरान में कसरा यूज होता है, कुरान में कसीर यूज होता है, और यहाँ पर कौसर भी यूज हो रहा है। कसीर का मतलब होता है, कसरा का मतलब भी प्लेंटी होता है, कसीर फिर और ज्यादा, प्लेंटी अलॉट, और कौसर जो होता है ना वो उससे भी ज्यादा, यानी कि इवन मोर, हम कह सकते हैं इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत ज्यादा। और जो कसीर है ना वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन कौसर हमेशा अच्छा होता है। तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि जो हमने आपको दिया है वो भी इनक्रेडिबल है, और जो दिया उसकी अमाउंट भी इनक्रेडिबल है, ठीक है। और उसके बाद इन्ना की तरफ आ जाते हैं कि अगर हम देखें ये वर्स आतैना कल कौसर, हमें ये कंप्लीट नजर आएगी, क्योंकि ना जो है यहाँ पर आतैना में ना वी के लिए यूज होता है, हम के लिए, और कास्ट जो है वो आपके लिए या यू के लिए यूज होता है। तो आतैना कल कौसर का मतलब भी यही है, वी हैव गिवन यू अबंडेंट गुड। इन्ना क्यों यूज हुआ है? इन्ना का मतलब होता है बेशक हम, सर्टेनली वी। तो अल्लाह इसका हम तर्जमा क्या करना, तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं सर्टेनली वी कोमा वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड, कि जब अल्लाह ताला सर्टेनली कह रहे हैं और साथ में वी को दो दफा यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर तरह के शुबह शुबात जो है वो हटा रहे हैं, कि नो डाउट वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड, कि ये बात तो होके ही रहनी है। और यहाँ पर हम कौसर की थोड़ी डिटेल भी पढ़ लेते हैं कि कौसर से मतलब क्या है। एक तो कौसर से मतलब रिवर इन पैराडाइज है, ठीक है, रिवर इन पैराडाइज। दूसरी चीज कौसर से जो मतलब है कि अबंडेंट गुड, यानी कि अबंडेंस इन एवरीथिंग, हर नेमत में अबंडेंस, मतलब लिटरली हर नेमत में अबंडेंस जो है उसे हम कौसर कहते हैं। और कुछ मुफस्सिरीन का कहना ये भी है कि इससे मुराद वही है, इससे मुराद कुरान है, इससे मुराद उम्मत है, लेकिन हम कौसर का मतलब ये ले सकते हैं रिवर इन पैराडाइज और अबंडेंस इन एवरीथिंग, हर चीज में, हर नेमत में अबंडेंस। तो ये हमने देख लिया, इन्ना आतैना कल कौसर, नो डाउट वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड, वर्स नंबर 1 की। वर्स नंबर 2 है फसल्ली ली रब्बिका वनहर, प्रे ओनली फॉर द सेक ऑफ योर मास्टर एंड सैक्रिफाइस। यहाँ पर जो फा यूज हुआ है ना, फा जो यूज होता है कुरान में वो पिछली वर्स और अगली वर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि जैसे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिकॉज वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड, प्रे ओनली फॉर द सेक ऑफ योर मास्टर एंड सैक्रिफाइस। कि अल्लाह ताला जब हमें कोई नेमत देते हैं, जब अल्लाह ताला हमें गिफ्ट देते हैं, तो हमारा क्या फर्ज है, हम उस फेवर का रिस्पॉन्ड करें, उस फेवर का शुक्र अदा करें। एंड द बेस्ट वे टू थैंक अल्लाह इज थ्रू सलाह। नमाज से ज़्यादा बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फसल्ली रब्बिका वनहर, प्रे ओनली फॉर द सेक ऑफ योर मास्टर एंड सैक्रिफाइस। इससे हमें एक और चीज भी मिलती है कि व्हेनेवर अ डिफिकल्टी कम्स टू यू, जब भी कोई मुश्किल आपके पास आए, नंबर 1 क्या करना है, रिमेंबर द गुड अल्लाह हैज ग्रांटेड यू। वो अच्छी अच्छी चीजें सारी याद कर लें जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है वो बहुत ज्यादा होता है मुकाबले उसके जो अल्लाह ताला हमसे ले ले। तो वो देखें कि अल्लाह ने हमें दिया कितना ज्यादा है। सेकंड सीख है फिर नमाज से वो करनी है, हेल्प लेनी है। तो फसल्ली ली रब्बिका वनहर, दूसरी चीज जो है नहर, नहर कहते हैं सेक्रीफाइस को, और यहाँ पर मेजॉरिटी स्कॉलर्स का ओपिनियन यही है कि ये सेक्रीफाइस ऑफ ईद उल अजहा ही है। तो कुरान में नहर के लिए और भी वर्ड्स दो यूज होते हैं, एक ज़बहा है और एक ज़का है। तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर ज़बहा और ज़का क्यों नहीं यूज हुआ, जबकि ज़बहा का मतलब स्लॉटर है और उसका ज़का का मतलब भी स्लॉटर है, नहर का मतलब भी स्लॉटर है, सेक्रीफाइस है। तो नहर में ऐसा क्या खास है, तो वो हम देखते हैं कि ज़बहा का मतलब होता है स्लॉटर फॉर रिलीजियस मोटिव्स और स्लॉटर फॉर हायर एजेंडा। जैसे कि युज़ब्बिहूना अबनाअहुम, फिरौन के बारे में कि वो उनके बेटों को कत्ल कर देता था, ज़बह कर देता था। और जो ज़का है इसका मतलब होता है टू किल एन एनिमल क्विकली। लेकिन नहर का मतलब है अबव द चेस्ट या कट इन द थ्रोट।
बट इन द थॉट से हमें सीधी बात जो हमें प्रॉफिट याद आते हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद आते हैं, बिकॉज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये आजमाइश दी गई थी और ये तसल्ली रब्बी का वनहर जो है इट इज द लेगेसी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिकॉज जो रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती कि अल्लाह ताला मुझे मेरी औलाद को नमाज पर कायम करे, ये दुआ भी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। तो जो तसल्ली रब्बी का वनहर है इट इज द लेगेसी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने कुरैश को कहा, मैंने अहले मक्का को कहा फलयाबुदू रब्बा हाज़िल बैत, सूरह कुरैश में, कि इन्हें चाहिए कि अपने रब के घर की इबादत करें, लेकिन दे फेल्ड, द पीपल ऑफ कुरैश दे फेल्ड, वो लेगेसी ऑफ इब्राहिम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो नाउ इट इज यू who will lead the legacy of Ibrahim, कि अब आप हैं, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो कि लेगेसी ऑफ इब्राहिम को, दीन इब्राहिम को, दीन हदीफ को, जो अल्टीमेटली अल्लाह ताला का दीन है, उसे लेकर आगे चलेंगे। मैसेंजर पीस बी अपॉन हिम इज नॉट ओनली द फुलफिलमेंट ऑफ दुआ ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम बट आल्सो द फुलफिलमेंट ऑफ लेगेसी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हम देखते हैं कि अबू लहब ने क्या कहा था कि बकरा Muhammad's name shall not continue, Muhammad's legacy shall not continue सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नो इट इज यू हु विल कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इनको मैंने कहा कि लेके चलो, लेकिन ये फेल हो गए, तो अब आप लेगेसी को लेके चलेंगे। अबू लहब का आइडिया ऐसा था कि उसे लगता था कि शायद लेगेसी को आगे लेके जाने वाला या लीनेज को आगे लेके जाने वाला या फैमिली को आगे लेके जाने वाले बस औलाद ही होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक और वे दिखाया कि तुम्हारा इतना लिमिटेड वो है, देखो मैं नबी पाक सल्लम का जो नेम है वो आगे तक कैसे लेके जाता। तो नबी पाक आज भी हम देखते हैं काबा में जो है वो अबू लहब की लेगेसी नहीं है, कुफार की लेगेसी नहीं है, बल्कि इट इज द लेगेसी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, लेगेसी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्टीमेटली द लेगेसी ऑफ अल्लाह ताला। मतलब अल्लाह ताला का जो दीन है वो वहां पर है। फिर इन्ना शानिया का हुवल अफजल, verily it is your enemy who has been cut off from the root। अल्लाह ताला कहते हैं it is not you, it is your enemy alone who has been cut off from the root। इसकी लेगेसी खत्म होने वाली है, इसका मेंशन डिसकंटिन्यू होने वाला है। और रफ़अना लका ज़िक्रक, आपका तो जिक्र हमने बुलंद रखा है। तो ये अल्लाह ताला उन्हें बता रहे हैं कि और अल्लाह ताला ने इट इज नॉट यू करके बात इसलिए नहीं की क्योंकि अल्लाह ताला उस सारी जो तकलीफ का जो मंजर था वो वापस सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बस इतना कहा इन्ना शानिया का हुआ लगता है इट इज योर एनिमी हु हैज बीन कट ऑफ फ्रॉम द रूट। तो इस सूरह में हम ये देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द लॉस व्हिच इज अनबेरेबल टू थिंक अबाउट, अल्लाह फोकसेस प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अटेंशन टू व्हाट ही हैज बीन गिवन, के उस बारे में सोचने के बजाय जो कि वो लॉस जो कि सोचना बहुत ही मुश्किल है, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान बिल्कुल उस तरफ कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने उन्हें दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। और ये क्या ये इट इज यू हु विल कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये हमारे लिए भी एक जेम है, एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब भी कोई ऐसा लॉस हो, ऐसा कोई नुकसान हो जिसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल लग रहा हो, तो अपने आप को किताब अल्लाह के साथ कनेक्ट कर लें और उस तरफ फोकस करें जो अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया हो। ये हमें लॉ मिल जाता है कि फोकस योर अटेंशन टू व्हाट अल्लाह हैज गिवन यू। अब कंपैरिजन ऑफ सूरह माऊन एंड सूरह कौसर है। सूरह माऊन जो है ना वो सूरह कौसर की प्रीवियस सूरह है, जब सूरह माऊन आती है वो सूरह कौसर आती है। अब हम देखते हैं इनमें क्या कंपैरिजन क्या बन रहा है। तो सूरह माऊन में अल्लाह ताला सबसे पहले फरमाते हैं अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। कि अल्लाह ताला माइजरलीनेस का बताते हैं कि ये ऐसा इंसान है तो इतना कंजूस है जो कि यतीमों को धक्के देता है पीछे, कि मतलब इतना वो ग्रीडी है कि वो अपना माल शेयर नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला माइजरलीनेस का बता रहे हैं कि और वो लोगों को भी इंकरेज नहीं करता कि वो यतीमों को खाना खिलाएं, क्योंकि अगर वो लोगों को इंकरेज करेगा तो उसे खुद भी तो खिलाना पड़ेगा। तो नंबर 1 जो चीज है माइजरलीनेस है। बेसिकली अल्लाह ताला सूरह माऊन में ना 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ हिपोक्रेट्स बता रहे हैं, मुनाफिकीन की 4 निशानियां। तो पहला जो है वो है माइजरलीनेस, सेकंड जो है नेग्लिजेंस ऑफ प्रेयर, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो लोग अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। सहवा का जो वर्ड है ना वो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को इतना कम इंपॉर्टेंट समझना, यानी कि किसी चीज को इंपॉर्टेंट समझना ही ना कि उसके बारे में केयरलेसनेस शो की जाए। मतलब आप तभी किसी चीज के बारे में केयरलेसनेस शो करते हैं जब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सहवा का वर्ड इसी मायने में आता है कि वो लोग हैं जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। वल्लज़ीना हुम युराऊन, जो लोग नमाज के मामले में रियाकारी करते हैं, इन मैटर ऑफ सलाह, वो शो ऑफ करते हैं। यहाँ पर लैक ऑफ इखलास हमें नजर आ रहा है। और चौथी जो चीज है वल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, नॉट गिविंग द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ चैरिटी, छोटी सी छोटी चीज भी नहीं देते हैं, मतलब जो बिल्कुल ही
कम चीज होती है देने वाली, उसको भी नहीं देना पसंद करते हैं, उनको शेयरिंग करना पसंद नहीं है। और सूरह कौसर में हम देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं पहली ही आयत में, इन्ना आतैना कल कौसर, नो डाउट वी हैव गिवन यू द अबंडेंट गुड। यहाँ पर अबंडेंट गुड कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने आपको अबंडेंट गुड दिया है सो यू शुड आल्सो गिव। ये जो सूरास हैं पहले तो खसूसन जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होती हैं और अमूमन हम सब के लिए। तो अगर हम लोग माइजर हैं और हम लोग सूरह माऊद में पढ़ रहे हैं अराइतलजी को जी वो बिद्दीन फजाली कर लेती है दुआ लेती हैं वला यहुद अला ताम रिज़्की। अगली सूरत में अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तो तुम्हें बहुत सारा दिया, तो तुम क्यों नहीं आगे देते हो? सो अल्लाह हैज गिवन यू द अबंडेंट गुड सो यू शुड आल्सो गिव। नंबर 2 है सूरह कौसर में ऑर्डर टू ऑफर सलात। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं फसल ली, यहाँ पर कमांड की गई है, पहले अमर है, अल्लाह ताला कमांड कर रहे हैं कि नमाज पढ़ो, मतलब ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में केयरलेसनेस दिखाई जाए, नमाज पढ़ो। और फिर उसके बाद थर्ड जो चीज है सूरह कौसर में वो है फसल्ली ली रब्बिका, प्रे फॉर द सेक ऑफ योर मास्टर, कि सिर्फ अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। यहाँ पर हम इखलास देख रहे हैं। और फोर्थ क्या है? वन हर सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस में भी हम देखते हैं कि हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और बिकॉज एनिमल्स आर नॉट फ्री, पैसे देकर एनिमल्स खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी करते हैं उसमें से एक मीट का जो हिस्सा है वो पैसा वो हमें सदका भी करना होता है, चैरिटी भी करना होता है। तो इसमें भी चैरिटी का एलिमेंट पाया जाता है। अब हम इसमें कंपैरिजन देखते हैं कि नंबर 1 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और एट्रीब्यूट्स ऑफ हिपोक्रेट्स क्या है? पहला वो माइजर है, तो अल्लाह ताला वो सूरह कौसर में कह रहे हैं इनातीना कल कौसर, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया, तो तुम क्यों नहीं आगे देते हो? फिर हम सूरह माऊन की तरफ आते हैं। नंबर 2 नेग्लिजेंस ऑफ प्रेयर, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, दे आर हीडलेस ऑफ देयर प्रेयर। अल्लाह ताला सूरह कौसर में फरमा रहे हैं कि फसल्ली ली, नमाज पढ़ो। सूरह माऊन में थर्ड लैक ऑफ इखलास, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम युराऊन, रियाकारी करते हैं मैटर ऑफ सलात। वहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं फसल्ली ली रब्बिका, प्रे फॉर द सेक ऑफ योर मास्टर। यहाँ पर हमें इखलास नजर आ रहा है। और सूरह माऊन में चौथी जो चीज है वो है नॉट गिविंग द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ चैरिटी। और जो सूरह कौसर में है वो हमें सेक्रीफाइस नजर आ रहा है, यू हैव टू सेक्रीफाइस, और जिसमें हमें चैरिटी भी जरूर देनी है। और फिर इसके बाद ये कि जो सूरह माऊन में जो 4 एट्रीब्यूट्स है ना, जैसे सूरह कौसर की लास्ट वर्स है इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, कि आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। अब्तर जो होता है ना, ये ऐसा शख्स है जिसकी तरफ से हर भलाई को रोक दी गई हो। और जो सूरह माऊन में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं, ये अब्तर की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं। It is dedicated to the acts of the one whose mention should be discontinued, whose legacy should be discontinued. ऐसा शख्स की लेगेसी आगे नहीं चलनी चाहिए। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ये अब्तर के एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम ये देखते हैं दोनों में कंपैरिजन, ये कैसे कंट्रास्ट में कैसी चीजें आ रही हैं। फिर आगे माइंड ब्लोइंग सीक्वेंस ऑफ दीस सूरास, हम देखेंगे सूरह कौसर की जो प्लेसमेंट है वो कैसे की गई है। सूरह फील आती है पहले, मतलब हम तरतीब देख रहे हैं। सूरह फील में नबी पाक सल्लम की दुआ का जो पहला हिस्सा है, नबी पाक सल्लम की नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जो फर्स्ट हाफ है वो फुलफिल हो रहा है, दुआ ऑफ अ पीसफुल सिटी। सूरह कुरैश में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का अदर हाफ पार्ट जो हो रहा है वो फुलफिल हो रहा है, दुआ फॉर मेकिंग द सिटी प्रॉस्पेरस, और मतलब अमन वाला शहर, खुशहाल शहर। उसके बाद अल माऊन में अल्लाह ताला उनके बारे में बात करते हैं, द पीपल हु आर नॉट द राइटफुल कस्टोडियंस ऑफ काबा, जो काबा के राइटफुल कस्टोडियंस नहीं है, जिन्हें हक नहीं है काबा का कस्टोडियन होने का। और सूरह कौसर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि you are the rightful custodian of Kaaba because Allah has given you the abundant good. सूरह माऊन में तो अल्लाह ताला ने कहा इनमें तो ये बात है miserliness, negligence of prayer, ये तो they are not the rightful custodians of Kaaba. अल्लाह ताला सूरह कौसर में कह रहे हैं कि you are the rightful custodian of Kaaba because you have been given the abundant good. ये वो हम प्लेसमेंट देखते हैं कैसे सूरह कौसर को इधर रखा गया है। फिर incredible use of number 10, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। मुझे ये बताएं कि वर्स नंबर 1 में कितने वर्ड्स हैं? वर्स नंबर 1 में कितने वर्ड्स हैं? इन्ना आतैना कल कौसर में वर्स नंबर 1 में 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। वर्स नंबर 2 में भी 3 वर्ड्स हैं, और वर्स नंबर 3 में 4 वर्ड्स हैं। तो इन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स सूरह कौसर में कितने हो गए? 10। अब हम लोग आते हैं उसकी तरफ, नंबर ऑफ लेटर्स इन फर्स्ट वर्स।
लेटर्स इन फर्स्ट वर्ड्स कितने 10 हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं. नून, अलिफ, आइन, तौ, या, लाम, काफ, वाव, सा, रा. ये फर्स्ट वर्ड्स में लेटर्स हैं जो कि 10 हैं, एक्सक्लूडिंग रेपिटेशन. ठीक है. वर्ड्स नंबर 2 में कितने लेटर्स हैं, वो भी 10 हैं, ये भी आप सुन लें. फा, सौद, लाम, रा, बा, काफ, वाव, अलिफ या हमजा, अलिफ, नून, हा. ये 10 लेटर्स जो हैं ये हैं सेकेंड वर्ड्स में. थर्ड वर्ड्स में जो है वो भी 10 लेटर्स हैं. वो कौन कौन से हैं, मैं बता रही हूँ एक्सक्लूडिंग रेपिटेशन. ठीक है. अलिफ, नून, शीन, काफ, हा, वाव, लाम, बा, ता, रा. ठीक है. ये लेटर्स इन थर्ड वर्ड्स हैं, ये भी 10 है. हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी 10 है, लेटर इन सेकंड फर्स्ट वर्ड्स 10 है, लेटर्स इन सेकंड वर्ड्स 10 है, लेटर्स इन थर्ड वर्ड्स 10 है. फिर उसके बाद मोस्ट रिपीटेड लेटर अलिफ. जो सूरह कौसर में सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है ना लेटर, वो अलिफ है. और अलिफ भी हम देखते हैं वो भी 10 ही आए हुए हैं. और एक चीज जो 10th अलिफ है ना, अगर बाद में आप ये पेंसिल कॉपी लीजिएगा और ये इन सारे लेटर्स को चेक कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर 10 है बन रहे हैं. तो ये 10th जो अलिफ है शायद ढूंढने में मुश्किल हो जाए, ये मैं बता देती हूँ कहाँ पर है. अभी हमने जो लिखा है ना वो आते ना का को, ना के ऊपर हमने खड़ा जबर डाला हुआ है. ठीक है. लेकिन अरबी में आते ना का को ऐसे भी लिखा जाता है कि अलिफ, आइन, तौ, या, नून, अलिफ. मतलब नून के ऊपर खड़ा जबर डालने के बजाय वो अलिफ डाल देते हैं और उसके बाद काफ. तो ये जो 10th अलिफ है ये नून के बाद है. अब यहाँ पर खड़ा जबर है तो अलिफ जो अगर हम डालें तो फिर वो 10th है. लेटर्स विच हैव ओनली यूज्ड वंस, वो भी 10 है. और वो कौन कौन से हैं, आइन, तौ, या, सा, फा, स्वाद, हा, शीन, हा और ता. ये वो 10 लेटर्स हैं. पूरी पूरी जो सूरा है उसमें सिर्फ वन टाइम यूज हुए हैं, रेपिटेशन नहीं हो रही है. उसके बाद ईच आया एंड्स विद रॉ. जो तीनों आयते हैं, इन्ना आतेना कल का उसर, फसल लिली रबी का वनहर, इन्ना शानी का वुल अब्तर, तीनों आयतें जो हैं ये रॉ पे एंड हो रही हैं. और मजे की बात ये रॉ जो है वो अरेबिक अल्फाबेट की सीक्वेंस में नंबर 10 पे ही आता है. और जो सूरास हैं कुरान में टोटल जो रा पे एंड होती हैं, दे आर आल्सो 10, वो भी 10 है. और जो सूरह कौसर है, इट इज द 10th सूरा. तो ये इनक्रेडिबल यूज ऑफ नंबर 10 था. और हम ये देखते हैं कि भाई 10 ही क्यों यूज हुआ है, तो उसके पीछे भी एक फैक्ट है कि द फैक्ट बिहाइंड नंबर 10 इज दिस कि इन दिस सूरा कि ये 10th डे ऑफ दुल हज होता है, उसी दिन हमें वन हर का हुक्म मिला है कि इसको हम कुर्बानी करते हैं, वो हम 10th डे ऑफ दुल हज करते हैं. दिस इज इन फैक्ट द डे ऑफ सैक्रिफाइस. तो इसलिए यहाँ पर ये इनक्रेडिबल यूज ऑफ 10 हुआ हुआ है. ये सिर्फ एक छोटी सूरह है कुरान की, तो जिसमें हमने इतना कुछ निकाल लिया, पता नहीं बड़ी सूरों में क्या 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 जेम्स छुपे हुए हैं. अब लेट अस ड्राइव सम लेसन्स की तरफ आ जाते हैं. आज हमने ये स्क्रीन खाली छोड़ी है. आज आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से जेम्स, कौन कौन से लेसन्स सीखे हैं. आप बताएं कि कौन कौन से लेसन्स हैं. अच्छा, बी द पीपल ऑफ शुक्र, बी द पीपल ऑफ शुक्र. यस. हमना कह रही हैं वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर व्हाट ही हैज गिवन अस. We should be thankful to Allah for what He has given us. Here, thank Allah before complaining. Thank Allah before complaining. उसके बाद आयशा राजा कह रही हैं be the people of sabr. उसके बाद Aris Tahir is saying sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. Pray during difficult times. Fatima is saying pray for the sake of your master only. Aisha Raja is saying trust on Allah.
اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا کہ مجھے کوثر مل رہا ہے، مطلب ریور ان پیراڈائز کے کانٹیکسٹ میں اگر لیں ہم، تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ تھا کہ مجھے کوثر مل رہا ہے، میری امت کو بھی کوثر مل رہا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے سر اٹھایا اور مسکرانے لگے. اور ایک دفعہ ہم لیسنس ریوائز کر لیتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی چیز یہ کہ فوکس آن وٹ اللہ ہیز گیون اس، اور جہاں پر عام لوگ یہ کہیں کہ یہ تو صبر کا موقع ہے، وہاں پر قرآن والے اس سچویشن کو بالکل ہی ڈفرینٹ طرح لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ pray only for the sake of your master and sacrifice. اور یہ کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پہنچے تو فرسٹ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے، دوسرا سیکھ ہیلپنگ صلاح، اور یہ کہ جب کوئی بھی مشکل آئے تو ہمیں اس مشکل سے بالکل دھیان ہٹا کے بالکل فوکس اپنا اس طرف کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. مطلب ہمیں ہر چیز میں اچھائی پازیٹیو چیز دیکھنی ہے کہ اگر میرے ساتھ بیڈ مومنٹ چل رہا ہے تو اس میں پازیٹیو بات کیا ہے. دوسرا ہمارا سیشن ختم ہو گیا. اب اس کو ہم لوگ لینس آف قرآن والا بھی جو بات تھی کہ لینس آف قرآن میکس یو لک ایٹ دا ورلڈ ڈفرینٹلی، کہ آپ چیزوں کو بالکل ہی ڈفرینٹلی دیکھتے ہو جب آپ قرآن کا لینس لگا لیتے ہو، اور جب آپ نے قرآن کا لینس نہیں لگایا ہوتا تو پھر ہم چیزوں کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں. سو اب کل کی جو کلاس ہے وہ قرآن اینڈ میتھمیٹکس کی کلاس ہے انشاءاللہ. اٹس گوئنگ ٹو بی سو مچ فن، اٹس گوئنگ ٹو بی سو امیزنگ. بہت کچھ آپ سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ اس سے، بیکاز جیسے آج ہم نے نمبر 10 پڑھا ہے اس میں ہم بہت سارے امیزنگ میریکلس دیکھنے والے ہیں، اور آپ ضرور ضرور جوائن کیجیے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی امیزنگ. تو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.